Friends, yesterday a learned three-judge bench of the Honorable Supreme Court delivered a judgment. The name of the case is not relevant, it is called Vijay Chaudhary, but the judgment is important, and the apex court, it is important because it was hearing challenges on provisions and amendments relating to the Enforcement Directorate's powers of arrest, attachment, seizures, reversing the burden of proof, etc., under what is known as the PMLA, the Prevention of Money Laundering Act. These challenges related to several issues, but in particular several issues arising from amendments to that act made in 2018, and the Honorable Apex Court has upheld those provisions and dismissed those challenges. We have undoubtedly the greatest respect for the Honorable Supreme Court, and no one can say it with greater feeling than I, having spent a lifetime there. But we are saying respectfully through you that the court has to keep in mind the consistent patterns of selective and motivated deployment that the ED has been put to in the last 8 years. We have said generally and in other briefings earlier, and we have not been the only one, we are joined by almost every party of the political spectrum, barring the ruling party, that the ED has functioned clearly as an extension of the ruling party. Through the weapon of the ED, we have said earlier, the BJP is suppressing, sabotaging and subjugating the opposition. Consider certain facts. I am not giving any opinion, I am not commenting, I am giving only facts. As per official records presented before Parliament, between 2004 and 2014, 104 odd raids were conducted. 104 odd raids. Between 2014 and 22, which is 8 years as opposed to the previous 10 years, this figure is now 3,000. 112 se 3,000. These are shocking statistics. They illustrate the weaponization of the ED, and this weaponization is done, used, invoked, unleashed only against political rivals who routinely raise their voice against this government. A vast number of cases, to everyone's knowledge, and in no point repeating examples, has been filed against opposition leaders, but almost none against those who are members of the ruling dispensation or with known and perceived proximity to them. Where this is the open secret, it is the most well-known truth universally in India. Where cases were initiated against members of the opposition, when these persons have switched allegiances in favor of the ruling party, these cases have either gone into cold storage or they have been abandoned. And that is why we have had the whitewashing machine example used many times in the past 8 years, and not without reason at all. This pattern by the government of malicious misuse also exposes, underlines, cries out for the necessity of safeguards, many of which, on the contrary, instead of providing safeguards, have been dismantled by this government through amendment after amendment. For example, prior to a 2019 amendment, I am giving only one out of many examples, seizure could be only after a report has been presented to a magistrate. This now has been done away with, deleted, and seizures can take place without any notice, without the participation of the magistracy,
and entirely at the discretion of the Directorate. It was pointed out that the appellate tribunal, which is really the first independent source of recourse, has been without a chairman since 2019 September. How can you have safeguards operationalized in reality with such vital positions of even a full-time chairman being vacant for over 3 years now, or almost 3 years? It is clear that this is simply not a priority for this government. In our humble and respectful view, some of these considerations merited greater attention and intervention by the Honorable Supreme Court. It is ultimately the citizenry of this country looks up to the Supreme Court, which needs to provide safeguard, security, safety, security, safeguard to the opposition from the vendetta of the ED to ensure stability in democracy. It is no one's case, friends, that the government should not investigate money laundering. This is a caricature and a distortion of our stand. Or it is not anybody's case that strong mechanisms should not be created to tackle the problem of financial crimes. But it is but obvious that this requires the creation of meaningful safeguards. And with a government which, according to us, has routinely, repeatedly stood and argued against fundamental rights of the citizenry, diluted or violated them, treated them with scant respect and regard, unbridled powers to investigative agencies can have and do promise to have devastating consequences for our democracy. Nevertheless, as I close, all I can say is that we, the Indian National Congress, shall continue to speak out and expose such issues without fear or favor. Friends, कल बहुत संक्षेप में दोस्तों, कल एक 3 मेंबरान की खंडपीठ ने उच्चतम न्यायालय में एक निर्णय दिया जिसका नाम है विजय चौधरी। वो महत्वपूर्ण निर्णय इसलिए है क्योंकि वो कई प्रावधान, कई ढांचे, कई चीज़ें जिस एक्ट को आप जानते हैं PMLA के नाम से, उसके विषय में है। और विशेष रूप से चुनौती जो दी गई थी उस एक्ट के कई प्रावधानों को, विशेष रूप से वो प्रावधान जो 2018 के संशोधनों द्वारा लाए गए थे। संक्षिप्त एक वाक्य में कहा जाए तो उच्चतम न्यायालय ने वो सभी प्रावधान सही माने हैं, अपहोल्ड किए हैं और उनकी चुनौतियों को खारिज किया है। जहां हमारे को निश्चित बिना संदेह सबसे ज़्यादा आदर विश्वास उच्चतम न्यायालय के लिए है, साथ साथ हम अपनी कर्तव्य हम समझते हैं एक गणतांत्रिक प्रक्रिया में, एक जिम्मेवार अखिल भारतीय विपक्ष के हैसियत से, कि आपके समक्ष हम वो बातें रखें जो इस एजेंसी के लगभग 8 साल के एक ज़बरदस्त द्वेषपूर्ण कारनामों से भरी है। वो इतिहास सिलेक्टिव है और द्वेषपूर्ण है। हमारे हिसाब से एक डिपार्टमेंट, एक यूनिट, ये एजेंसी अधिकतर 8 साल में बन गई है सरकार की, सत्तारूढ़ पार्टी की। किसी भी रूप से अपनी कानूनी हैसियत को वो भूल गई है, बदल गई है, खत्म कर दी है उसको। कुछ सरल आंकड़े देखें आप। इस एजेंसी द्वारा रेड्स हुई हैं 2004 से 14, 10 वर्ष का पीरियड, 112, और 2014 से 2022 ये फिगर है 3000, 300 नहीं 3000, 8 वर्ष में। और उसके पहले वाला आंकड़ा
10 वर्ष में। इससे बड़ा स्पष्ट है कि दुरुपयोग करना एक आक्रमण की हथियार के तौर पे इस एजेंसी का, इस कानून का, अपने दूसरे राजनीतिक रंग वाले दलों के विषय में, विपक्ष के लोगों के विषय में एक आदत सी बन गई है इस सरकार की। हम सब जानते हैं, ये सर्वविदित है, इसकी बात आज 8 साल से हो रही है कि 99% केसेस, एक्शन, रेड्स उन विपक्ष के लीडरान के विषय में हुई है जो जिनका मत मेल नहीं खाता, जिनकी नीति मेल नहीं खाती, जिनका विचारधारा मेल नहीं खाती सत्तारूढ़ पार्टी और सरकार से। और जहां ऐसे लोगों के विरुद्ध ऐसे केसेस दर्ज हुए हैं, ऐसा एक्शन लिया गया है और बाद में उन्होंने दल बदल किया है, अपना विचारधारा बदली है, तो जादुई छड़ी के समान वही केसेस एक ठंडे बक्से में चले जाते हैं, या तो ठंडे बस्ते में, और या वो खत्म कर दिए जाते हैं, भुलाए दिए जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं, पड़े रहते हैं विलुप्त, भुलाए हुए। ये सभी चीज़ें हम जानते हैं शुरुआत से। इस बात को ज़बरदस्त रूप से सबका ध्यान आकर्षित करती है कि इन सब के विषय में सेफगार्ड्स चाहिए, वो सुरक्षाएं, वो सुरक्षा चक्र जिससे इन चीज़ों का दुरुपयोग या तो हो न पाए या न्यूनतम हो। एक्चुअल, सही, सच्चा जो ज़मीनी सच है वो इसका विपरीत है। ये विडंबना की बात है, वो ज़मीनी सच विपरीत है। इसलिए इसके कई उदाहरण मैं आपको एक दे रहा हूँ। 2019 के पहले अगर आपको कोई भी चीज़ जब्त करनी थी, ज़बरदस्ती जब्त करनी थी, तो आपको मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ता था। 2018 के अमेंडमेंट्स द्वारा ये चीज़ हटा दी गई है और अब इस एजेंसी ईडी को ये पूरा अधिकार क्षेत्र दिया है मजिस्ट्रेसी का, यानी कुछ हद तक एक बाहरी तत्व जो ज़्यादा निष्पक्ष माना जाता है मजिस्ट्रेसी, उसको हटा दिया गया है। एक और उदाहरण कि इसकी चुनौती जो दी जाती है उसका महत्वपूर्ण एक स्तंभ होता है अपीलेट ट्राइब्यूनल, जो एक बाहरी तत्व माना जाता है, निष्पक्ष माना जाता है, एक न्यायिक व्यक्ति द्वारा उनके अध्यक्ष होते हैं। ये 3 साल से रिक्त है स्थान फुल टाइम अध्यक्ष का, 3 वर्ष से। कहाँ जाए नागरिक? ये सभी मुद्दे हम समझते हैं कि उच्चतम न्यायालय की तरफ ज़्यादा ध्यान आकर्षित करते हैं, ज़्यादा इन पे ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि विपक्ष को प्रताड़ित करना ही सिर्फ बच गया है ईडी का काम। विपक्ष को प्रताड़ित करना ही सिर्फ बच गया है ईडी का काम। विपक्ष की मांग है माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस प्रक्रिया पर देनी है लगाम। अंत में दोस्तों, हमारे वक्तव्यों का अगर आप मजाक उड़ाना चाहते हैं तो बात दूसरी है, लेकिन हमने कभी भी ये हिंट नहीं किया, कोई कहा नहीं कि ये तहकीकात नहीं होनी चाहिए। हमने कहा कि जब इसका इस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है, हो सकता है, होता आ रहा है, तो आपको सुरक्षा चक्र बनाना है। सेफगार्ड्स की बात की है हमने। और हम जानते हैं कि सरकार ने पिछले 8 वर्षों में हर क्षेत्र में मानव अधिकार, संवैधानिक अधिकार, स्वच्छ अभिव्यक्ति करने का अधिकार, विभिन्न जो हमारे संविधान के अधिकार हैं उनको कम करने में, सीमांकित करने में 2 सेकंड नहीं सोचा है। इसलिए अति आवश्यक है कि ऐसे एक्ट्स के विषय में एक सुरक्षा चक्र, और वो सिर्फ एक ऐसी संस्था बना सकती है जिसमें पूर्ण रूपेण आस्था है भारत के नागरिकों की, यानी उच्चतम न्यायालय। दोस्तों, इसके बावजूद हम सिर्फ एक वायदा कर सकते हैं, एक प्रतिज्ञा कर सकते हैं
एक अखिल भारतीय जिम्मेवार, सबसे पुरानी एक प्रकार से राजनीतिक पार्टी ऐसी बातों में हमेशा नागरिकों के साथ खड़ी है और आवाज़ उठाएगी, विरोध करेगी उन चीज़ों का जो किसी रूप से भी दुरुपयोग के क्षेत्र में आते हैं, और हम कभी इस बात से झिझकेंगे नहीं। धन्यवाद। जी 112। एक सवाल है कि 2012 में भी कई अमेंडमेंट किए गए थे आपकी सरकार के द्वारा, कुछ जो है वो आपने भी प्रोवाइड की, और 2018 के इसीलिए मैंने कहा इसमें कोई संदेह नहीं है कि 2012 में भी और 13 में भी कुछ संशोधन हुए थे। ये एक प्रक्रिया होती है, हर सरकार का अधिकार क्षेत्र है। लेकिन आप चुनौती देख लीजिए, बहस देख लीजिए, दलील देख लीजिए, आप उनका नेचर देख लीजिए। जो एक ज़्यादा आक्रमण मान सकते हैं, जिसको आप डिग्री में कहीं ज़्यादा मान सकते हैं, वो सभी 2018 के हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि संशोधन नहीं हुए, लेकिन 90% फोकस बहस दलील का भी 2018 के विषय में था। और मैं तो कहता हूँ संशोधन भी कर लीजिए आप। जब हमारी विधायिका ऐसे संशोधन अनुमति देती है, करती है, तो क्या आप समझते हैं उसका लाइसेंस देती है उसका दुरुपयोग करने का? वो मान के चलती है कि ये एक निष्पक्ष, संतुलित, समझदार, स्वतंत्र, विवेक वाली एजेंसी, जिसका सिर्फ दोस्त है कानून और संविधान, उसके अनुसार करेगी। 2014 से आज तक आप किसी से पूछ लीजिए अपने हृदय पे हाथ रखकर कि इस प्रकार का प्रहार, दुरुपयोग, डिग्री, संहार कभी भी, आज मैं सिर्फ इस सरकार की बात नहीं कर रहा, बीजेपी सरकारें भी पहले आई हैं और सरकारें भी हैं, इन प्रकार के कानून में पीएमएलए की भी बात नहीं कर रहा हूँ, इस प्रकार के और समान कानून भी हैं, किसी ने ऐसा दुरुपयोग नहीं किया। चिदम्बरम के समय में ही इसको कमेंट्स किया गया था, तो सवाल ये भी उठा है बीजेपी की तरफ से कि ये बेटे भी याचिका करता है कि बड़ा मजाकिया, मैं तो कहूँगा वाहियात सा एक आर्गुमेंट है। उन्होंने कोई कानून पास किया है ये सोच के कि इस देश के 125 करोड़ लोग, उनमें से कभी सिर्फ उनके पुत्र ही उसका दुरुपयोग या उपयोग करेंगे। ये किस प्रकार का वाहियात दलील मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कानून विधायिका पास करती है, एक व्यक्ति पास नहीं करता, एक मंत्री पास नहीं करता। कानून कभी किसी विशेष व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता। जो कानून में है उसको चुनौती देने का अधिकार आपके भी मेरे में भी है। ये कुतर्क है, बिना समझे कुछ चीज़ कही जा रही है। मैं तो आपका औचित्य भी नहीं समझ रहा हूँ, क्या प्रश्न है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जिस आदमी ने ये कहा है उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, हमारा मांग, देखिए, पहला हमारा काम है कि आपके समक्ष इस बात को उजागर करना। आपके समक्ष एक आवाज़ होनी चाहिए, सरकार को मालूम होना चाहिए कि इस देश में ये नहीं है कि कोई विपक्ष बोलेगा नहीं इसके विषय। आपके ज़रिए जागरूक करना नागरिकों को। और दूसरा है कि इस जागरूक की प्रक्रिया में सभी लोग समझते हैं, सभी संस्थाएं इस बात को सुनती हैं, हमारी आशा और विश्वास है। और उस आशा और विश्वास में निश्चित रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण, आदरपूर्वक आदरणीय एक संस्था जो है वो उच्चतम न्यायालय है। ये गणतांत्रिक और राजनीतिक प्रक्रिया है। सही बात है। तो क्या आप उस एक केस को लेंगे, उसके साथ साथ जो 50 केस में आपको गिना दूं जहाँ पर उसका दुरुपयोग हुआ है उसको भी मान लीजिए? फिर हमने कभी भी नहीं कहा, कोई भी नहीं कह रहा है कि जहाँ पर तथ्य हैं, जहाँ पर एविडेंस सही रूप से है, जहाँ पर आप निष्पक्ष रूप से कर रहे हैं, कोई किसी ने नहीं कहा है।
जिस वार्ता की जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं उसमें भी किसने कहा बताइए आप? कांग्रेस को छोड़िए, कांग्रेस तो बिल्कुल नहीं कहा, किसी और ने भी नहीं कहा है। लेकिन साथ साथ उसमें आपने दिखा रहे हैं आप इतना, आप उसकी क्यों नहीं बात करते हैं? ऐसे 50 केस है 2014 से अभी तक, उसकी उस पर आवाज़ क्यों नहीं उठती है? उसी आधार पे, उसी कसौटी पे करिए उसकी बात भी। आपको मालूम है पीएमएलए में कन्विक्शन रेट कितनी है? 0.5 क्या होता है? 0.5 यानी 100 में एक भी नहीं, आधा। आपकी ये पूरी, ये बहुत महत्वपूर्ण आपने याद दिलाया मेरे को, आपका ये पूरा कमरा एक ही काम में लगा है, 3000 रेट्स कर रहे हैं। आजकल मजाक ये कि वो दिन बात होती है कि आज कोई ईडी रेट की सुनी नहीं बात, वो न्यूज़ होती है, ये नहीं होती है न्यूज़ की ईडी रेट हुई है। उसके बाद आप 100 में एक आधा कन्विक्शन लेते हैं इस बड़ी आर्मी के लिए, इस बड़ी मशीनरी के लिए, इतने रिसोर्सेज के लिए, इतनी औषधियों के लिए। इसका मतलब है कि जब इसको तथ्यों और एविडेंस की कसौटी में जांचा जाता है तब इसमें शून्य पाया जाता है, क्योंकि 0.5 शून्य के बहुत क्लोज है, बहुत निकट है। No, this is not for a political party to comment. That is individuals. You see, you cannot say that a political party has a cause of action. Political party has a cause of action to educate, illumine, talk, raise voices. But yes, by this process also democracy is deepened and strengthened, and people who are aggrieved will take appropriate action. But isn't it ironic that the person who's aggrieved, for example, Mr. Chidambaram in Islam, it is he who brought this whole to No, that's a complete misconception. You are again making it person-centric. I have just given you the bulk of these challenges are to 2018. And where is the question of Mr. Chidambaram or Mr. X or Mr. Y or party X or Y? This is a legislative device. There are two issues. One, legislation, the bulk of the objectionable one has come in 2018. Pointed answer. Second, apart from the legislation, its misuse is also after 2014. Let's forget 2018. There was a law. It was brought before 2014. Can we not talk about the gross misuse after 2014? I mean 112 to 3000 rates. What is the rate for? If you are having a conviction rate of 0.5% and you are having 3000 rates against 112, it means it is intended as an instrument for intimidation. It is intended as an instrument of threat, fear. And the Supreme Court fails to see this. No, that's a different issue. Those facts are decided by an individual facts of a case. Okay. Thank you. Thank you.